Okay, welcome students to learning session number 6 of chapter number 4, which is environmental management of science 2. So in this chapter, so far we have seen ecosystem, food chain, food web. We have seen trophic levels, energy pyramid, pollution and its types. And last time, in the last learning session, we had seen laws enacted by the government for environmental conservation. And we had seen Chipko movement of Bishnoi. Okay. So these are the things we're going to cover today. First, we're going to cover story of Jadhav Molay Peyang. Then we're going to see what is biodiversity, and then we are lastly going to see what are sacred groves. These are the new words we're going to learn today. First is afforestation, next is barren land, and last is grove. Okay. So today is a special learning session because most of the things we're going to learn today we are going to learn it from question and answers. Okay, everything we're going to learn new today all are going to be through learning some new question and answers. So this is an end of chapter question on page number 46, question number 6e. The question is, what do we learn from the story of Jadhav Molay Peyang? Okay, so to answer this question, you should first know the story, right? So here's the story. I have taken this photo from your textbook. So I'll just read out the story and explain what it means. Okay. So Jadhav Molay Peyang is a highly capable person in Assam. Born in 1963, he was working as a forest worker since the age of 16. 16 साल की उम्र से ही वो फॉरेस्ट में एक वर्कर की तरह काम कर रहा था. Okay. Once, large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. वो जिस गांव में रह रहा था उसके बाजू से ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है और वहां पे फ्लड की वजह से बहुत सारे सांप मर गए. एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ऐसा नहीं होना चाहिए अगली बार से, इसलिए मोलय प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स. ओके, 20 बाम्बू के प्लांट्स उसने प्लांट कर लिया. So in 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. Okay, so वहाँ का लोकल जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था उसने सोशल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट चालू किया. अफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या? अफॉरेस्ट्रेशन यानी ऐसी जगह पे फॉरेस्ट बनाना जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा पेड़ नहीं थे आजू बाजू. ओके, सो मेकिंग अ फॉरेस्ट वेयर देयर वर नॉट मेनी ट्रीज अराउंड. सो पहले जहाँ पे ज्यादा ट्रीज नहीं थे वहां पे फॉरेस्ट बनाना, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट. कैसे बनाओगे फॉरेस्ट? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. तो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने एक सोशल फॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट चालू था. सोशल यानी सब लोग मिलके ये करेंगे, सोसाइटी मिलके ये करेगी. ओके, कितने जगह पे? 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड. इतने ही जगह पे वो लोग का प्लान था प्रोजेक्ट में. Molay was one of the few workers, forest workers, who were looking after the project. So Molay, ये जो इंसान का फोटो है, he was one of the person who was taking care of this project. Okay. As a result of his continuous work and planting, as a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area witnessed the forest cover over 1,360 acres. Okay. सो प्रोजेक्ट कितना था? 200 हेक्टर्स का, और उसने प्लांट कितना किया? 1360 एकर्स. दोनों के यूनिट्स अलग है, यहाँ पे हेक्टर्स है, यहाँ पे एकर्स है. एकर्स हेक्टर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है. सो बहुत, जितना प्रोजेक्ट था उससे बहुत ज्यादा उसने प्लांट कर लिया. और बैरन एरिया विटनेस. बैरन मतलब क्या? बैरन यानी उस जहाँ का सॉइल क्वालिटी इतना अच्छा नहीं कि प्लांट्स अपने आप से ग्रो करे. तो फिर इसने कैसे फॉरेस्ट बना? वहां पे ट्रीज प्लांट करके उसका बहुत देखभाल भी किया. ओके, इसकी वजह से वहां पे एक फॉरेस्ट बन गया. बट बैरन एरिया मतलब क्या? सॉइल क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है जिससे अपने आप प्लांट्स ग्रो कर सके. सो टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख. Okay, today this jungle in Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of the hard work of his 30 years. Okay, so उस जंगल, ये जो जंगल है कहाँ पे है? कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम. आसाम के कोकिलामुख जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है. एंड उसकी वजह से उसके 30 इयर्स की मेहनत की. ओके, सो तुम लोग ने अब तक कितना पढ़ाई किया? यू लर्न 10 स्टैंडर्ड्स, यू हैव स्टडीड फॉर व्हाट? अराउंड 10 इयर्स यू हैव स्टडीड.
उसका ट्रिपल टाइम इसने सिर्फ ट्रीज प्लांट किया और उसका देखभाल किया। 30 years की मेहनत है उसकी। He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by the Government of India for his unparalleled work. कि पद्म श्री जो अवार्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो काफी प्रेस्टिजियस होता है, बहुत बड़ा माना जाता है, और इतना इजीली मिलता नहीं है। एंड सेकेंडली फॉर हिज अनपैरेलल वर्क, अनपैरेलल यानी जो बहुत कम लोग कर पाते, कोई नहीं कर पाता ऐसे काम के लिए। नाउ इट इज वेल नोन एज मोलाई जंगल, पूरे जंगल को उसका नाम दे दिया। ओके, जंगल का नाम है मोलाई जंगल। Many people come together to destroy the forest, but one single person, if determined, can establish a new forest. एक फॉरेस्ट को अगर तोड़ना होगा, खराब करना होगा, पूरा तबाह करना होगा, तो बहुत सारे लोग लगते हैं। whereas अगर डिटर्मिनेशन होगा तो एक इंसान से भी पूरा का पूरा एक नया फॉरेस्ट बन सकता है। So that's the story of Jadhav Molai Pyang. Okay, so the question at the end of the chapter is what do we learn from the story of Jadhav Molai Pyang? Okay, so we are going to see the answer now. So first point I've written, Mr. Molai single-handedly transformed a barren land into forest. Okay, barren land ऐसे जहाँ पे अपने आप से plants नहीं उग सकते, उसको अकेले ने एक forest में बदल दिया। Next, it was due to his positive attitude, love towards nature and hard work. इन 3 qualities की वजह से, what are the qualities? Positive attitude, love towards nature and hard work, that he could achieve success in planting trees in over 1360 acres of land. Okay, इन 3 qualities की वजह से उसको success मिला। Next, from the story of Jadhav Molai Pyang, we learn that we all need to make earth a better place to live for us as well as the coming generations. हम लोग सबको अर्थ को एक अच्छा जगह बनाना पड़ेगा हमारे लिए और आने वाले generations के लिए भी। From his story, it is clear that if a large crowd causes harm to the environment, even a single person, अगर बहुत सारे लोगों ने मिलके पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया, फिर भी एक इंसान, a single person, if determined, can establish a forest. अगर बहुत डिटर्मिनेशन होगा एक इंसान में, पूरा का पूरा फॉरेस्ट भी बना सकता है। एंड बेनिफिट द एनवायरनमेंट इन ग्रेट वेज, और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा करा के दे सकता है, सिर्फ एक इंसान अगर डिटर्मिनेशन होगा तो। ऑल्सो इफ वन पर्सन कैन मेक सच एन इम्पैक्ट, many people coming together in unity to take efforts for the environmental conservation can bring about a huge change. अगर एक इंसान इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है, तो अगर सब लोग मिलके काम करेंगे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। ओके, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सो दैट वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगेन कीप एन आई, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में I've always indicated what you all should copy and what you all should not copy. Okay, so in the last slide I've taken this from your textbook itself, right? So no need to copy, you all can read it from your textbook. Let's move ahead. Again, next question, write a short note on biodiversity, or this another question, write the types and examples of biodiversity. Both of them have the same answer. Okay, so if you had this one particular answer, तुम्हारे 2 क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। ओके, एंड अगेन ऑल दीज आर एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, ये सब बाय हार्ट होने चाहिए। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे बाय हार्ट हो जाने चाहिए। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी, फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। मैंने तुम लोग को शॉर्ट में पहले ही बोला था, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीजें होना, तो अलग अलग टाइप्स के लिविंग थिंग्स होना, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो इसका पक्का अच्छा प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने रिच है इन नेचर। क्यों रिच है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्यों रिच है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर में? क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट है। ओके, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीसीज। 3 टाइप के वैरायटीज हो सकते हैं, एक तो है ऑर्गेनिजम्स में, दूसरा है इकोसिस्टम्स में, और तीसरा है जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं सेम स्पीशीज के अंदर। ओके, वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो इट रिफर्स टू द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में भी कितना फर्क होता है, राइट? एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, ह्यूमन इज
one species, but each human is different from each other, right? Similarly, dogs, all dogs belong to the same species, but dogs में भी कितना variation होता है. So this is because of genetic diversity. Next, species diversity. Species diversity मतलब it refers to innumerable species of organisms that occur in nature. Innumerable यानी it's uncountable, इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते. So innumerable नहीं, बहुत ज़्यादा. क्या बहुत ज़्यादा है? Species of organisms that occur in the nature. नेचर में इतने ज़्यादा स्पीसीज है कि उसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, जितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑल कम इन अंडर species diversity. Okay, next and the last one, ecosystem diversity. So ecosystem diversity क्या होगा? It refers to the variation in ecosystems present in the nature. Ecosystems कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये ecosystem diversity से पता चलेगा. These ecosystems are formed by the interaction between plants, animals and their habitats. Ecosystems कैसे बनते हैं? We have already seen in detail, right? How are they formed? Basically, an important factor of ecosystems are interaction between plants, animals and their habitats and the surroundings. And जो कुछ भी environment में change हो रहा है उसके साथ कैसे interaction हो रहा है सब चीजों का. That's ecosystem. Each ecosystem has its own biotic यानी living चीजें, animals, plants, microorganisms and abiotic factors. Abiotic यानी जो non living है, trees, sunlight, water, river, etc. So that is ecosystem diversity. कितने अलग अलग ecosystems है. Okay, last point, in recent times biodiversity is threatened and special efforts need to be taken in order to conserve biodiversity. So आजकल recent times मतलब आजकल biodiversity खतरे में है. Okay, threatened यानी खतरे में है. क्यों? Because of basically pollution. We are not taking care of the environment, right? That's why जो बहुत सारे species है वो extinct हो रहे हैं. और एक्सटेंट हो रहे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है. जितना भी वैरायटी था, समझो अगर कोई प्लांट का स्पीशीज एक्सटेंट हो गया, सो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ विल रिड्यूस, राइट? मतलब वैरायटी कम हो रहा है. वैरायटी कम हो रहा है यानी बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है. ओके, एंड इट इज सेइंग दैट स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी टेकन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. अगर ये वैरायटी वैसे के वैसे रखनी है इतनी सारी, तो हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. So this is your answer to the two questions. Okay, first is short note on biodiversity and second is write the types and examples of biodiversity. Okay, next question we are seeing today is write the names of biodiversity hotspots. Okay, this is question number 6F. Write the names of biodiversity hotspots. So basically biodiversity hotspots क्या होते हैं? They are areas जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है. हॉटस्पॉट यानी बहुत ज्यादा मिल जाता है, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर places or areas where there is lot of biodiversity. So what are the biodiversity hotspots? I am not going to explain this question because इसमें कुछ explain करने जैसा है नहीं. It's basically a list of places which are biodiversity hotspots. Okay, the first one is Eastern Himalayas. ईस्टर्न हिमालयस में कौन से एरियाज कवर होते हैं? अरुणाचल प्रदेश का, भूटान का, ईस्टर्न नेपाल, ये तीनों एरियाज कवर हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, रफली. ओके, ईस्टर्न हिमालयस. नेक्स्ट इंडो बर्मा. बर्मा यानी म्यांमार. ओके, द कंट्री कॉल्ड म्यांमार. सो इंडो बर्मा, इंडो मीन्स इंडिया, बर्मा मीन्स म्यांमार. तो उस जो एरिया है इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर वगैरह होगा, उस एरिया में पूर्वांचल हिल्स, अराकान योमा, ईस्टर्न बांग्लादेश, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे एरियाज में अगेन इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. नेक्स्ट द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. ओके, एंड लास्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड आर मैडागास्कर, फिलीपींस, संडरलैंड in Southeast Asia, Brazil's Atlantic forest, Caribbean islands, eastern arc and coastal forests of Tanzania and Kenya. Okay, again there's nothing to explain. These are areas where a lot of biodiversity can be found. It's a list. Make sure you're by hearting this list. It can either be asked in this form question, or it could be asked as match the column, or it could be asked as name the following. So objectives may be easily put sakte. So make sure you are remembering all these names. Okay, we'll move ahead.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। अगर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, वैरायटी को वैसे के वैसे रखना है, वैरायटी कम होने नहीं देना, तो क्या कर सकते हैं? Let us see the answer. This table I've taken it from your textbook, but I'm telling you to copy this in your notebooks because it's a answer to a question. Okay, if you want, you can by heart this and then try to copy it in your notebooks. Okay, तभी के तभी by heart हो जाएगा. You all need not sit and by heart the answers afterwards. Okay, how can biodiversity be conserved? Is 7 points. First is प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो जो कुछ भी रेयर है, रेयर मतलब बहुत कम है. अगर कोई ऐसा स्पीशीज है, समझो कोई तो रेयर प्लांट है जो बहुत कम है इस दुनिया में, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो. सेकेंड, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज. ओके, सो अगर कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है, बहुत ज्यादा बर्ड्स है, उसको नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज बना दो. उससे क्या होगा? उससे वहां पे कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता है, वहां पे कोई पेड़ नहीं काट सकता है, और वहां पे जो कुछ भी एनिमल्स और बर्ड्स होंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. सो इसलिए नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज बना दो. नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स. सो अगर हमें पता है कि एक रीजन है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है, राइट. सो अगर हमें ऑलरेडी पता है तो इसको हम लोग बायो रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं. बायो रिजर्व डिक्लेयर किया यानी उसमें आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, ट्रीज कट नहीं कर सकते, एक्सेट्रा. सो अगर हमें पता है ऐसा कोई बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बहुत रिच एरिया है तो उसको बायो रिजर्व हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज. अगर कोई स्पेशल स्पीशीज है सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक बेसिक लॉ है, कोई भी एनिमल होने दो, कोई भी प्लांट होने दो, उसको प्रोटेक्ट और उसको कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द रूल्स. अगर कोई रूल बना है गवर्नमेंट ने, हमने लास्ट टाइम देखे थे ना कितने सारे लॉज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो कुछ भी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए. लास्ट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. जो कुछ भी हमें नॉलेज पता है ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जो ट्रेडिशनल है, बहुत सालों से हमें पता है, उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना चाहिए. लिख के रखो, रिकॉर्ड करके रखो, so that we don't forget and we use that knowledge. So these are the points. How can biodiversity be conserved? Again, it's a question behind your textbook. Make sure you're by hearting this question. Okay, let's move ahead. I think this is the last question for the day. Write a short note on sacred groves. Groves मतलब क्या? So basically groves are a collection of trees. अगर कुछ ट्रीज साथ में होंगे उसको हम लोग ग्रोव्स बोल सकते हैं. ओके, सो व्हाट्स अ ग्रोव? ग्रोव इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज. सीक्रेट मतलब क्या? सीक्रेट यानी हिंदी में बोले तो पवित्र. ओके, समथिंग विच इज सीक्रेट उसको बोलेंगे पवित्र. सो फॉर एग्जांपल मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको पवित्र माना जाता है. इट्स होली, सीक्रेट. सो सीक्रेट ग्रोव्स यानी कुछ तो पवित्र ग्रुप ऑफ ट्रीज है. ओके, सो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने बोला. So these are the points I have come up with for this answer. So first point, what are sacred groves? So the forest protected in the name of God. भगवान के नाम पे प्रोटेक्ट किया अगर किसी फॉरेस्ट को, सो भगवान के नाम में यानी रिलीजियस ग्राउंड्स पे, कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, वो उनको बोल रहा है उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो. ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ गॉड ऑन रिलीजियस ग्राउंड एंड कंसिडर्ड टू बी सीक्रेट, जिसको पवित्र माना जाता है, इज नोन एज सीक्रेट ग्रोव और देवराय. सीक्रेट ग्रोव को देवराय भी बोल सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर सीक्रेट ग्रोव्स? बेसिकली एक फॉरेस्ट है जिसको कुछ लोग भगवान के नाम पे या फिर उनके रिलीजन में बोला है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. उसको बहुत ही होली समझते हैं, उसको बहुत ही पवित्र समझते हैं, सीक्रेट समझते हैं. सो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? या तो वी कैन कॉल इट सीक्रेट ग्रोव और वी कैन कॉल इट देवराय. नेक्स्ट पॉइंट,
Sacred groves are conserved by the society and not by the government forest department. So अगर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, किसका काम है? इट्स बेसिकली द वर्क ऑफ गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राइट? गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम यही है कि फॉरेस्ट को बचाना है। बट सेक्रेड ग्रोव जो है वो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं बचाता, वो सोसाइटी ही बचा रही है। तो समझो एक गांव है, गांव के बाजू में एक फॉरेस्ट है, और उस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उस फॉरेस्ट को भगवान मानते हैं, उसके ट्रीज को भगवान मानते हैं, तो लोग ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन एज इट इज बीइंग कंजर्व्ड ड्यू टू स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस। कोई ऐसे सीक्रेट ग्रोव्स को स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है? इट्स बिकॉज उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग के रिलीजन में बोला है कि उसको प्रोटेक्ट करो। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो स्पेशल प्रोटेक्शन है क्योंकि उनके रिलीजन ने बोला है। एज इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन एज इट हैज बीन कंजर्व्ड ड्यू टू स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस। रिलीजन में उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट बोला है। लास्ट पॉइंट, sacred groves are present not only in western ghats of India but in the entire country. So western ghats में तो है ही इंडिया के sacred groves, बट पूरे कंट्री में भी तुम लोग को मिलेंगे sacred groves। तो वेस्टर्न घाट्स में भी मिलेंगे, पूरी कंट्री में भी मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज योर आंसर ऑन sacred groves. So these are the words we have learned today. First is afforestation. Afforestation मैंने क्या बोला था? एक ऐसी जगह पे फॉरेस्ट बना जहाँ पे ज्यादा ट्रीज नहीं थे। So establishing a forest while there was no tree cover. Next, barren land. Barren land यानी उसका सॉइल का क्वालिटी इतना खराब है कि प्लांट्स अपने आप से वहां पे ग्रो नहीं होंगे। सो इट हैज पुअर सॉइल क्वालिटी, सो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर, दैट इज barren land. And next we had seen grove. Grove क्या? It's basically a group of trees. Group of trees, groves. Okay, so that is it for today. I hope you all liked this session. इस सेशन में मैंने ट्राई किया है कि जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर पीछे दिए उसमें से ही मैं तुम लोग को नई चीज सिखा दूं। सो दिस वे वी सेव टाइम, राइट? अलग से जाके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। एंड अगेन ऑल द क्वेश्चंस वी डिस्कस टुडे वर एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, चैप्टर के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस है। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू बाय हार्ट। ओके, so I would say while you all are seeing the video and making notes, तभी के तभी by heart कर लो। You all can even by heart the answer and then try to write it in your notebook. Then तुम लोग चेक करके उसको करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिख सकते हो। So अलग से जाके by heart करने की जरूरत नहीं है। Okay, that is it for today, and we will see each other tomorrow in the next learning session. Oh, actually tomorrow is Sunday, right? Maybe day after tomorrow, Monday. Okay then, see you guys. Bye.